নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুবীৰ চাহা। এতিয়াহে গম পাইছা মানে নিউজত শুনছোঁ যে মিয়া মানুহে অসমৰ কোনটোবা জেগাত দখল কৰিছে আৰু অসমীয়াক খেদাইছে। এতিয়া বহি থাকা হেৰি কৰি থাকা এতিয়াহে গম পাইছা। তুমি আগত কৈ আছিলা মিয়া অসমীয়া ভাই ভাই, তুহুনহে আশ্ৰয় দিয়া আৰু তুহুনহে হেৰি কৰা। এইটো কি? অসমৰ মানুহ হয়তো আমি খেদা খাব লাগিব। আর চিনাক্তই মুসলিম দেশৰ হওক চিনাক্ত মুসলিম করব। অসমীয়া কলে কি হয়? অসমৰ কলে কি হয়? মুসলিম কিয় ক'ব লাগে? আমাৰ জমিন দখল কৰি আছে। হেমন্ত মামাই যি একশন কৰি আছে, যি দায়িত্ব ল'ব লাগে, যি কৰিব লাগে কৰি আছে। আমাৰো অধিকাৰ আছে, আমিও কিবা এটা কৰিব লাগিব। আমাৰ এই মিয়াৰ আমদানি বন্ধ কৰিব লাগিব। তাহাৰ তাতে কিনা খোৱা দোকানত হেৰি সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক দিব নালাগে। হিন্দুৰ দোকান আমাৰ অসমীয়া, বঙালী, বিহাৰীৰ দোকানৰ বদলে, মানে তাহুনতো হিন্দু। বিহাৰী হওক, অসমীয়া হওক, বঙালী হওক, হিন্দু হ'ব লাগে মাত্ৰ। তাহাৰ মিয়া মুছলমানৰ আমদানি ঘুচপেঠিয়াৰ বন্ধ কৰিব লাগে। বন্ধ কেনেকে হ'ব? তাহাৰ দোকানৰ বস্তু কিনা হেৰি কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। অসমীয়া হওক, মুছলমান হওক, অসমীয়া বিলাকে বন্ধ কি? যিকোনো কাম কৰিব কাৰণে মিয়া মানুহ বিচাৰিব নালাগে। সৰু সৰু কাম যেনেহেন খেতিৰ কাম, হেৰিৰ কাম আমি মিয়া মানুহ বিচাৰাও। আপোনাহঁতে মিয়া মানুহ বিচাৰাই এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। এতিয়া ধান কটা সময় আহি আছে। এই ধান কটা সময়ত ট্ৰেক্টৰ হওক, যি হওক, মিয়া মানুহ বিচাৰিব নালাগে, কামলা ইত্যাদি। তেতিয়াহ'লে তাহাৰ আমদানি বন্ধ হ'ব। এনেকৈ কৰিব লাগিব। যিকোনো কাম হ'লেও মিয়া মানুহ, গাড়ীৰ কাম হ'লেও মিয়া মানুহ ধৰিবই নালাগে। ক'তবা গেছা গাড়ী ৰিজাৰ্ভ কৰিছা ইয়া বুকিং কৰিছা যদি আপোনালোকে মিয়াৰ গাড়ী হওক ইয়া মিয়াৰ ড্ৰাইভাৰ হওক কেনচেল কৰি দিবা। কথা কোৱাটো নৰ্মেল, কিন্তু কথাৰ বদলে একো কিনা ব্যৱসায় কৰিব নালাগে। যিকোনো মাল বস্তু মিয়াৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব নালাগে। ধান হওক, খেৰ হওক, আপোনাৰ গৰুৰ ঘাঁহ হওক, গৰু হওক। এই কম দামৰ কেইটামান মিয়া কাপোৰ দোকানী আছে, কম দামত আপুনি লাভ কৰিব পাৰে ভাবি কিনে মিয়াৰ দোকানৰ পৰা কিনিব নালাগে। গৰমৰ দিনত প্ৰায় বৰফৰ আইচক্ৰীমৰ দোকান মিয়া মানুহে বনায়, মিয়া মানুহে আহে। এইবিলাকত কিনা বন্ধ কৰক। মানে আপোনাৰ চলিকেইটাই যি খাই আছে, মিয়া মানুহৰ পৰা বৰফ কিনি তাহোন কেনেহেন বনায়। মুতি দিব বৰফত, আইচক্ৰীমত চেলকি দিব, হেৰি কৰি দিব, এনেহেনে অভ্যাস তাহাৰ। মিয়া মানুহ নৰ্মেল, তাৰমানে ঘৰত আহিছে, কথা কৈছে, ঠিক আছে, কিন্তু বেপাৰিক সম্পৰ্ক নাৰাখিব। এনে কথা কোৱাটো বেলেগ কথা। কিবা কাম ওলাইছে বা হেৰি ওলাইছে দোকানত
মিয়াৰ দোকান এইবিলাকত কিনিবই নালাগে। গাড়ীৰ পাৰ্ট হওক যিকোনো বস্তু। মিয়া মানুহৰ ট্ৰেক্টৰ হ'লেও ইউজ কৰিবই নালাগে। দোকান দিলে মিয়া মানুহৰ খাবই নালাগে আপুনি। মাছৰ দোকান হওক, মাংসৰ দোকান হওক, দোকান হওক। আমি খোৱা নাই নেকি মিয়া মানুহৰ আহাৰ সময়ৰ আগতে মাছ মাংস? খেতি কৰি খাই আছো। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কিমান নীতি নিয়ম আছে। কাতি বিহু, ভোগালী বিহু, মাঘ বিহু, কিমান বিহু আছে। তাহোন নামানে এইবিলাক। আৰু অসমীয়া মানুহে ধান কটাৰ আগতে কি পূজা কৰে এইটো। আৰু ধান ৰোৱাৰ আগতো পূজা কৰে। বিহুৰ দিনা, দিনা। আমাৰ প্ৰত্যেক এটা নীতি নিয়ম আছে। তাতে নীতি নিয়ম নাই। এটাই নিয়ম আল্লাহ। আল্লাহ আৰু গাহৰিৰ কোনো পাৰ্থক্যই নাই। তাহাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দাড়ি ৰাখিব, আল্লাহৰ কয়। গাহৰিয়েতো থাকে, লেতেৰা জাগাত থাকে আৰু তাহাৰো ডাঙৰ ডাঙৰ দাড়ি থাকে। গাহৰিৰ পোৱালি, তাহাৰ সন্তান একো পাৰ্থক্য নাই। গাহৰিৰো পোৱালি 10জন হ'ব, তাহাৰো বেছিকে হ'ব, আল্লাহৰ কয়। বুজিছা? আৰু কাইবা যদি স্কুলৰ মাষ্টৰ চাই আছে এই ভিডিঅ', মই কৈ আছো মিয়া মানুহক যে শিক্ষা প্ৰশাসন দিয়া বন্ধ কৰক। বন্ধ একবাৰে বন্ধ নহয়। কাইবা যদি কয় মাদ্ৰাছাত পঢ়ছো কলি এডমিশ্যন নিদিবই, মাদ্ৰাছাত পঢ়া টিউচন নকৰিবই। আগতে মাদ্ৰাছাত পঢ়িছে যদি। টোটেল স্কুলৰ মাষ্টাৰবিলাক ক'ব খুজিছো মিয়া মানুহক কম কৰি দিয়ক পঢ়াবা। টিউচন দিয়া, স্কুলৰ এডমিশ্যন লোৱা, ডিগ্ৰী দিয়া। এটাই ক'ব যে তাহাক আপুনি পঢ়ি কি হ'ব? এই মাইণ্ডছেটত DNA-ত বয়া সোমাই আছে যদি, টেৰৰিষ্ট, নেক্সালাইট এইবিলাক সোমাই আছে যদি, ডাঙৰ ডাক্তৰ পঢ়ি, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি কি হ'ব? বোমা বনাই মানুহ মাৰিবি নেকি? এইবিলাকে ক'ব খোজো। মিয়াৰ কোনো ব্যৱসায়ত হাত পাও মানুহে নাথাকিব আপোনাৰ লগত। বঙালী হিন্দু, বিহাৰী হিন্দু, হিন্দু ঠিক আছে, তাহাৰ লগত কাম কৰিব পাৰা। কিন্তু মিয়া ঘুচপেটীয়া নহয়। কাকবাৰ নতুনকে মিয়া যদি দেখা পোৱা, খেদাই দিবা, নহ'লে পুলিচক, চৰকাৰক জনাবা। আৰু মামাক কৈ আছো যে আপুনি যে ডাঙৰ মিয়া কাটিম কৈ আছে, মিয়াই যে অসমীয়া কাটিম কৈ আছে, ডাঙৰ একচন ল'ব লাগিব আপুনি, নহ'লে বা বিৰাট বেছি বিপদ হৈ যাব ডাঙৰকৈ। আমাৰ যিমান চৰকাৰৰ বিৰোধী আছে, প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, এইটো একো নহয়। কিন্তু দেশ বিৰোধী, অসমীয়া বিৰোধী নাৰা প্ৰটেষ্ট কৰাটো ডাঙৰ একচন ল'ব লাগিব আপুনি। আৰু যিবিলাক ভিডিঅ' গাড়ীত বহি কৈ আছে মিয়া মানুহে অসমীয়াক মাৰিব, মাৰিব, মই কৈ আছো তহন মানুহকে মাৰবা পাৰা, ধৰ্মক মাৰবা পাৰা। তহন মূৰ্তি ভাঙি কোৱা, आप लोग मूर्ति तोड़कर बोल रहे मूर्ति रक्षा क्या नहीं, मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो तुम लोग की रक्षा क्या करेगा? तो बाबरी मस्जिद तोड़ा, उसका क्यों अल्लाह ने रक्षा नहीं किया?
ज्ञान बाबरी मस्जिद तोड़ने पर अल्लाह ने उसकी सुरक्षा क्यों नहीं किया? इस्लाम को इतना फॉलो करते हो, सुअरों की औलादो, सुअर में और तुम में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह भी सुअर वाला माइंडसेट रखता है। सुअरों के भी दर्जनों बच्चे हैं, तुम्हारी भी 10-20 बच्चे हैं। सुअर बच्चा पैदा करने में और मुसलमान बच्चा करने में कोई फर्क नहीं है। सुअर जैसे बच्चा करता है, मुस्लिम भी ऐसे ही बच्चा पैदा करता है, इस्लाम भी ऐसा बच्चा पैदा करने को बोलता है। तुम बच्चों को अल्लाह की देन कहते हो। शादी के बाद संबंध किसने मनाया? तुम्हारी बीबी के साथ तुमने ना अल्लाह ने। संबंध बनाने के बाद ही बच्चा पैदा हुआ ना, तो फिर अल्लाह कैसे बिना संबंध बनाए बच्चा दे सकता है? तब तो दुनिया के सारी औरतें, सारी महिलाएं प्रेग्नेंट होती। एक उम्र होता जिसमें महिलाएं, औरतें प्रेग्नेंट होती। उस उम्र में शादी हो भले ही ना हो। तुम लोग समझते हो शादी ना हो, महिला औरत प्रेग्नेंट हुआ तो तुम लोग बोलते हो कि किसके साथ सो के आए हो। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? जो ज़्यादा अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में सोचता है वो गद्दार है। जो बिना सोचे समझे भूकंप आया, जलजला आया, अल्लाह की देन है कहता है, बिना सोच के समझ के, वो पक्का मुसलमान। तो फिर मुझे ऐसे इस्लाम नहीं चाहिए, ऐसा धर्म नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में भी ऐसा होता तो छोड़ चुका होता कब का। तुम लोग के पास कजन मैरिज है ना, अपनी बहनों से शादी करने को कजन मैरिज के तो ठीक है, मान लिया कजन मैरिज, लेकिन अपनी माओ के साथ कैसे विवाह शादी कर लेते हो? मतलब मान लो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया तो तुम उससे शादी कर लोगे, या फिर तुम्हारी बहन होगी तो बाप तुम्हारी बहन से अपनी खुद की बेटी से शादी कर लेगा, माँ अपनी खुद के ही बेटे से शादी कर लेगा, खुद की औलाद से, खुद के पेट से पैदा हुए बच्चे से। ये है ना इस्लाम में। मतलब मदरसे में बच्चों का बलात्कार होता है तो प्रोटेस्ट होता है। क्यों प्रोटेस्ट होता है? वो तो इस्लाम की देन है बच्चों का बलात्कार करना। जो तुम लोग आयशा बोलते हो, जो किसी नबी की माँ है, उनके 15 साल के उम्र में 50 साल के व्यक्ति के साथ शादी हो गया था। तो बोलो तुम्हारे कितनी ऐसी नबियों की माँ है जो 15 साल 6 साल के उम्र में 50 या 40 के व्यक्ति के साथ शादी कर लिया कम उम्र में ही। 6 साल 15 साल की उम्र में 40 के व्यक्ति से उम्र के साथ शादी करवा दिया, निकाह करवा दिया। ये कैसे? मतलब अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ तुम्हारी नबी ने शादी कर लिया भाई, बेटी की उम्र के साथ। अल्लाह भी स्वर वाला माइंडसेट है, वो लोग भी।
कुरान जला दिया, अल्लाह के बारे में कुछ कह दिया तो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इंसान की जान चली गई, इसका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। मतलब किसी इंसान की जान जाती है तो जिंदगी वापस नहीं आ सकता। उनको मारने काटने के लिए उतावले हो रहे हो। ये कैसा धर्म हुआ? इस्लाम धर्म में कहा गया है काफिरों को मारो। उन्हें पता है काफिर है। कैसे पता? बाद में आया है तो पता होगा ना काफिर है। जो पहले आया है उन्हें कैसे पता काफिर है या नहीं है या आने वाला है? मान लो किसी के महिला के पेट में बच्चा है, उन्हें कैसे पता वो लड़का है या लड़की है? सोचोगे ना, दो नाम सोचते हो तो दो नाम सोचना पड़ेगा। लड़का होगा या लड़की। हम बहुत खुश होते हैं जब महिला के पेट में जब बच्चा होता है, खुश होते हैं बच्चा आने वाला है, लड़का हो या लड़की हो। इन लोगों का कुरान में ही लिखा है काफिरों को मारो। यह तभी मुमकिन है जब दूसरे धर्मों को मारना चाहिए, हिंदुओं को मारना चाहिए जब वो बाद में आया हो। मान लो किसी महिला के पेट में बच्चा है। बच्चा कुछ दिनों में होने वाला है या और 4-5 दिन बाकी है, 4-5 महीने। उनका नाम रास रख दिया और जब पैदा हुआ लड़की का नाम रास होगा, कैसा लगेगा? लड़की का नाम या लड़के का नाम सोच के रखा, बच्चा पैदा होने के बाद यह नाम रखेंगे और पैदी हो गई बेटी लड़की तो फिर कैसा लगेगा? लड़की का नाम लड़के जैसा। ऐसा ही है इन लोगों का भी। किसी को पता नहीं होता माँ के पेट में औरत के पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की। उनका जेंडर का पता करना मुश्किल है। वैसे ही जो धर्म पहले आता है उनको पता नहीं होता बाद में क्या होगा। सिर्फ इतना पता होता है कि बुराइयां होगी वगैरह होगी। अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छे संस्कार वाले होंगे, बुरे संस्कार दोगे तो बुरे संस्कार होंगे। जिसके साथ संगत वैसा ही स्वभाव। यह मूर्तियां बनाना, यह मानता हूँ मूर्तियां बनाना पूजा में हिंदू धर्म से वो मानता हूँ मूर्तियां पूजा करना गलत है, लेकिन मूर्तियां तराशना बनाना यह कला है। तुम लोग इस्लाम धर्म में कला को समर्थक ही नहीं है। जिहाद के नाम पे लड़ना लूटना ही किया जाता है। सबसे ज्यादा शब्द जिहाद इस्तेमाल करता है वो लोग करते हैं। जिहाद का मतलब है लूटना वगैरह वगैरह। हलाला के नाम पर औरतों करके औरत को कई मर्दों के साथ छुलाना। हलाला पर प्रोसेस क्या होता है? मान लो मेरी शादी हो गई, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, छोटी मोटी बात पर मेरी बीवी से झगड़ा हो गया तो मैंने 3 तलाक कर दिया। तलाक 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 तलाक।
तो फिर कुछ देर के बाद मेरी गलती का एहसास हुआ, तो मुझसे उसे दोबारा शादी करना पड़ेगा। उस पर होगा हलाला। हलाला करने के लिए दूसरे पुरुष को मनाना पड़ेगा। उस पुरुष के साथ मेरी बीवी का शादी होगा, निकाह होगा। और निकाह होने के बाद जिस पुरुष के साथ निकाह होता है, निकाह होने के बाद तुरंत तलाक नहीं देगा, तलाक देना पड़ेगा, लेकिन तुरंत तलाक नहीं होगा। तलाक होने के बाद तलाक तुरंत नहीं होगा, एक दिन बीत जाना पड़ेगा। मेरी बीवी को जिसके साथ निकाह हुआ है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जाकर तलाक होगा। वो बीवी मुझसे निकाह कर सकती है। भाई कौन सा माइंडसेट है? मतलब मेरी बीवी गलती से मुझसे तलाक हो गया, मैं ही निकाह नहीं कर सकता? एक रात में क्या होगा? सब कुछ होगा। मतलब शारीरिक संबंध बनेगा। वो संबंध से जो बच्चा पैदा होगा वो आपका हो सकता है, या फिर जिनके साथ हलाला हुआ है, निकाह हुआ है, उनका हो सकता है। वो तो नाजायज औलाद हुआ ना आपका औलाद है ना उनका। कोई मानने को तैयार नहीं होगा। यह कहेगा मेरा औलाद है, वो भी कहेगा तुम्हारा। लेकिन हकीकत तो यह है तुम्हारा औलाद बच्चा नहीं है, वो उसका बच्चा है जिसके साथ हलाला सारी रात शारीरिक संबंध बनाया उसने। उनका नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बच्चा भी सोच गया बाप का क्या नाम रखूं? फिरोज खान या अली मोहम्मद? फिरोज खान उनकी माँ का पति है, जब हलाला से पहले पति था, हलाला के बाद भी निकाह करके पति हो गया। और अली खान जिसके साथ हलाला करवाया गया, पवित्र पाक बनाया गया। तो क्या माइंडसेट? फिरोज खान असली बाप है या अली खान? मान लो फिरोज खान नपुंसक है, बाप नहीं बन सकता, तो फिर अली खान ही बाप ही होगा। और जो पर्दे की बात बोल रहा है, बुर्खा पर्दा अपने घर में ही पहनो। मतलब इज्जत ढकना, तन ढकना सही है, लेकिन हिजाब पर्दा, समझ रहे हो? अपनी गलती को छुपाने का काम। अपनी गलती को छुपाने का काम है ये हिसाब का काम। मतलब इज्जत, तन ढकना, शरीर ढकना सही बात है, लेकिन पूरी तरह से जो गलत माइंडसेट है वो गलत माइंडसेट ही होगा। जिसका इज्जत बलात्कार करना है, इज्जत के साथ दुष्कर्म करना है, वो करके ही सोरेगा। वो पूरे कपड़े में रहे, नंगा रहे या अधनंगी रहे, खराब सोच वाला खराब सोच ही रहेगा। इज्जत लूटने वाला इज्जत लूट कर ही चला जाएगा ना। इसलिए तन ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना नहीं। पूरी शरीर का तन ढकना, शरीर ढकना सही है, लेकिन चेहरे को भी नहीं। चेहरे से कुछ नहीं होता। मान लो आपकी माँ को अस्थमा है
वहाँ कस्टम है। आपको धर्म, आप इस्लाम धर्म के अनुसार आपको नकाब हिजाब चेहरे को भी ढकना है, तो फिर के आपकी मार्क खत्म ही हो जाएगा ना। जिसको अष्टमा ऐसे बन करके तो नहीं रख सकते ना। मैं आपको এবাৰ কৈ আছো অসমীয়াসকল, এই দেশখন হেৰি হোৱাৰ আগতে সাৱধান হৈ যাওক। যাক নতুন মিয়া দেখে তাক নেৰবা। আর আমার যে লোকেল যে নিবাসী মিয়া আছে, আপুনি ভয় নাখাব, আমাৰ লগত থাকক। আপোনাক আমি একো নকৰোঁ, মাত্ৰ এই ঘুচপেটীয়া সোমাই যে আহি আছে তাহাক খেদাম। আপুনি আপোনাৰ জেগাত সুৰক্ষা, আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ। যি মিয়া আগৰ পৰাই নিবাসী আছে তাৰ একো নহয়, তাৰ ছোৱালীবিলাক, ভণ্টিবিলাক, বোৱাৰীবিলাক একো নহয়। সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব অসমৰ মানুহসকলৰ। যাই ইলিগেল সোমাই আহিছে তাৰ ৰক্ষা নাই। লুংগি খুলি টানিম আমি, আৰু হিজাব পিন্ধা অলপ আপনার ধার্মিক অঞ্চলত মুসলিমবিলাক পিন্ধক, একো কথা নাই, কিন্তু বেছি পিন্ধিব নালাগে। धार्मिक अंचल में मुसलमान हिजाब पहने या अपनी धार्मिक कपड़े पहने कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिकली जहाँ पर कई धर्म एक साथ मिलना जुलना है वहाँ पर क्यों पहनना। नॉर्मल कपड़े पहनो। स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल यूनिफॉर्म ही चलेगा, हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन छोटे कपड़े नहीं चलेगा। स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर छोटे कपड़े नहीं, पूरे कपड़े देना होगा। सर, इंडियन सरकार को ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम धर्म को धार्मिक पहनने से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम धर्म को भी सोचना चाहिए। पब्लिकली जहाँ पर कई धर्म के लोग हो, कुछ और चल रहा है, उसमें इस्लामिक कपड़े हिजाब नहीं चलना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। जैसे बाहर गए हो, ऐसा नॉर्मली कहीं पर बाहर कुछ नहीं, घर पर पहनो, अपनी धार्मिक समय पर पहनो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन स्कूल कॉलेज पर थोड़ा सोचना चाहिए, कई धर्म के लोग हैं। इस्लामिक स्कूल हो तो कोई बात नहीं, उसमें हिजाब पहनो या धार्मिक कपड़े पहनो, कोई बात नहीं। लेकिन कई स्कूल ऐसे कई धर्म के लोग रहते हैं, उनमें क्या मानसिकता फैली जाएगी, ये तो सोचो। कई इस्लामिक लोग तो इंडियन नेशनल एंथम ही नहीं पता। राष्ट्रगान कई धर्मों में गलत नहीं बोल रहा, गलत है, नहीं बोला गया। आप लोगों को किसने सिखाया राष्ट्रगान बोलना गलत है? जन गण मन सऊदी अरब भी गा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय गान, आपको क्यों प्रॉब्लम है इसमें? अपनी देश में रहकर अपने देश का खाना खाकर राष्ट्रीय गान नहीं बोल सकते, तो फिर आप कैसे देश के लोग हो? मुस्लिम हो या हिंदू, राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। ये देश की और आपकी इज्जत की बात है। और जिन लोगों को नेशनल एंथम जनगण नहीं पता, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीख लो। आप लोग को नहीं पता, सिखाया नहीं गया, ठीक है, मान लिया। आप लोग सीख तो सकते हो, लेकिन हम लोग को नहीं पता, हम क्यों सीखेंगे? हमारे मजहब में नहीं है। यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट को बदलो। नहीं तो आप लोग जो धराधर सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हो, सुअर की तरह दर्जनों बच्चे पैदा करते हो,
10-20, मतलब आप लोग अल्लाह की देन क्यों कह रहे हो? बच्चा अल्लाह की है। आप लोग शादी के बाद सुहाग रात या पहली रात बीबी के साथ नहीं मनाते, अल्लाह मना के जाता है क्या आपका? अल्लाह सेक्स करके जाता है क्या जो अल्लाह की बोल रहे हो? जब भी किसी मुस्लिम कंट्री पर हमला हुआ अपनी बच्चे को दे देंगे भाई, उस मासूम की क्या गलती है? उस बच्चे को दे दोगे, उस बच्चे की क्या गलती है जो वहां पर मरने के लिए छोड़ दोगे? गाजा पर हमला हुआ था, बोल रहे हो गाजा के लिए अपने बच्चे को भी कुर्बान कर देंगे कुछ लोग के लिए। बच्चे की उम्र कितना था, 6 साल या 12 साल होगा। उनकी क्या गलती है? वो उसने क्या गलत काम पाप किया था जो उन लोग को मारने की सोच रहे हो? यह माइंडसेट बदलो, नहीं तो क्या सोचेगा मेरा बाप गलत है। और एक बात कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया एक ही हिस्सा है, लेकिन वो लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है।